Today we are reading chapter first in Political Science of Class 8, the Indian Constitution and its legal framework. Our first topic is Constitution. First of all, we must know what is Constitution. Constitution is a set of fundamental rules according to which a country can be governed. We can say वो रूल और रेगुलेशन उनका सेट जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को किसी भी देश को चलाया जा सकता है. इट डिसाइडेड व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी. फॉर एग्जांपल, इफ वी प्ले अ गेम, we have to follow some rule and regulation of that particular game. So every participant can be treated equally and can take part equally. In the same way, if we are living in a country, then we have to follow some rule and regulation which is included in the Constitution. Discuss about the significance of Constitution. Significance, or we can say importance of a Constitution. Why we need Constitution? Constitution acts as a check on the misuse and unlimited concentration of power, while it protects weaker section from unfair practices. It is the soul of a country. Our Constitution, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमारे संविधान के द्वारा जो हमें शक्तियाँ दी गई है, हमें जो पावर दी गई है, हम उसका मिसयूज ना करें. ना तो हमारी गवर्नमेंट और ना हम लोग उसका मिसयूज कर सकते हैं. जैसे अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर या हमारे राष्ट्रपति या हमारे जो भी मिनिस्टर है वो चाह कर भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो उनकी पावर में नहीं है या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करता है चेक करने का कि कोई भी ऐसा कोई काम ना करे जो उस सोसाइटी में रहने वाले वीकर सेक्शन के इंटरेस्ट की अगेंस्ट हो या उनकी हित के, उनके लाभ की अगेंस्ट ऐसा कोई काम उनके द्वारा ना किया जाए. If we talking about the India, our Indian Constitution, after getting independence, our leader of that time realized a need of written record of some laws according to which they can govern the country. So they formed a constituent assembly to frame a constitution. Our constitution in India, it was enacted on 26 November 1949, while it came into effect on 26 January 1950, which we are celebrating as a Republic Day every year. N. Gopal Swami, Dr. B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Muhammad Shahidullah, B.L. Mittal, and some of other leaders who helped in the drafting were Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Sarojini Naidu, and Dr. Rajendra Prasad. And we all know Dr. Rajendra Prasad is our first president. जैसे हम सब जानते हैं कि उस समय means when we got the independence, उस समय हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, हमारे जो लीडर थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, अम्बेडकर जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं. Another feature of constitution and another importance of our Indian constitution is it is the longest written constitution in the world. Of Indian constitution, अब कुछ विशेषताएं हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जिसके बारे में हम स्टडी रीड करेंगे. जिसमें फर्स्ट पॉइंट है सेक्युलर. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. Means India does not have any state religion. इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है. It give right to the citizen to follow their, propagate and choose their religion according to their choice. वो अपने नागरिकों को इतनी फ्रीडम देता है कि वो अपनी पसंद से
अपने धर्म का अनुसरण कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। इट मीन्स सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्म निरपेक्ष। इट मीन्स इंडिया डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। इंडिया ने अपना कोई धर्म डिक्लेयर नहीं किया है। इसके नागरिक या हम सब अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवाद। It's our constitution try to reduce the gap between rich and poor by giving equal opportunities to its citizen. समाजवाद मीन्स हमारे देश में जो अमीर और गरीब का भेद है, संविधान में कोशिश की गई है कि वो इस भेद को कम करने की कोशिश करें। कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, ये हमारी सरकार जितनी भी अपॉर्चुनिटी देती है, चाहे हमारी गवर्नमेंट जॉब की हो, सर्विसेज की हो या एजुकेशन की हो, वो सारी सिटीजन में अपने नागरिकों में इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे अगर किसी सर्विस के लिए अप्लाई करना होता है तो एक क्वालिटीज डिसाइड की जाती है। अगर जो मिनिमम क्वालिटीज अगर किसी सिटीजन के अंदर है तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बर्थ प्लेस, जेंडर, sex, is all without any discrimination. Now the third point is democratic republic. Democratic means जनतंत्र या हम बोलते हैं प्रजातंत्र. It means we are people of a country can choose their representative according to their choice through the election. हम हमारी रिप्रेजेंटेटिव को हमारे जो लीडर्स हैं उनको अपनी चॉइस से चुन सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इलेक्शन। हमारी कंट्री में अगर कोई पर्सन 18 इयर्स या इसके अबाव है तो वो अपनी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वो अपनी चॉइस से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करवा सकता है, उनको वोट देके। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स ऑल आवर लीडर्स are elected. We are not governed by a hereditary rulers. हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो जितने भी हेड हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, वो हेरिडिटरी नहीं है, यानी मीन्स वंशानुगत नहीं चुने जाते। हम उनको इलेक्ट करते हैं, हम अपनी चॉइस से उनको इलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। नाउ फोर्थ पॉइंट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म मीन्स distribution of power. We all know that our government work at three level. Three level means central level, state level and district level. These three level our government work. This separation of power is called federalism. या हम बोलते हैं संघवाद. सेंट्रल लेवल या यूनियन हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी नेशनल लेवल पर वर्क करती है, जबकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकार है, जैसे हमारे राजस्थान की सरकार है, वो अपने राजस्थान के अंदर जितना भी काम होता है वो सारा राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर किया जाता है, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। तो द पावर ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड फेडरलिज्म। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म. पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स संसदात्मक बोलते हैं इसे हिंदी में। पार्लियामेंट्री फॉर्म मीन्स पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रेम द लॉज. हमारे जितने भी कानून बनाए जाते हैं, हमारे जो कानून बनते हैं देश में, उसका जो सुप्रीम या जो इम्पोर्टेंट या जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो हमारी संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, जिसमें ये सारे कानून पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स. इन इंडिया 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इट्स सिटीजन. हम सबको, हम जितने भी इंडियंस हैं, इन सबको कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट दिए जाते हैं, कुछ बेसिक राइट दिए जाते हैं जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। ये हिंदी में इनको मौलिक अधिकार बोला जाता है। ये 6 टाइप के हैं जो हमें दिए गए हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू चूज आवर रिलीजन, right to speech, right against exploitation and constitutional remedies.
fundamental rights are given to citizen to protect them from unfair practices. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे साथ हमारे देश में किसी भी तरह से कोई गलत ना हो या हमसे हमारे कोई अधिकार ना छीने या हमारे डेवलपमेंट में कोई बाधा ना आए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट्स दिए हैं, ये अधिकार दिए हैं। नाउ 7th पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स गवर्नमेंट वर्क इन 3 organs by 3 organs। ऑर्गन मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 भागों में या 3 तरह से काम करती है। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हम बोल सकते हैं व्यवस्थापिका, जो हमारे लिए लॉ फॉर्म करती है। द इंस्टीट्यूशन विच फ्रेम लॉ फॉर कंट्री। सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब जो उन लॉज को जो पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है, उनको लागू कराने का काम जो होता है वो हमारी एग्जीक्यूटिव के थ्रू किया जाता है। एंड द थर्ड इज जुडिशियरी। जुडिशियरी मीन्स ऑल द कोर्ट सिस्टम, हमारी न्याय की जो भी प्रक्रिया है वो जुडिशियरी जो ऑर्गन है उसके द्वारा पूरा किया जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेजिस्लेचर मीन्स व्यवस्थापिका जो हमारे लिए रूल्स लॉज बनाती हैं, उनमें चेंजेस करती हैं, दिस इज लेजिस्लेचर। थर्ड सेकंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको लागू करने का काम जो उनके द्वारा किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एंड थर्ड इज जुडिशियरी। जुडिशियरी मीन्स हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, वो सारा जुडिशियरी ऑर्गन्स के थ्रू किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ लॉ। हमारा जो संविधान है उसकी प्रधानता के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट जुडिशियल रिव्यू, इसका पहला पॉइंट है जुडिशियल रिव्यू। आवर सुप्रीम कोर्ट हैज राइट टू चेक द लॉज एंड रेगुलेशन विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अधिकार दिया गया है कि जो भी लॉ एंड रूल्स बनाए जाते हैं उनको वो चेक कर सकता है। If a law is against the spirit of constitution, it declare unconstitutional। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं वो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है या हमारे समाज के इंटरेस्ट में नहीं है, तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रखी गई है कि वो हमारे एक्ट या जो पार्लियामेंट के थ्रू जो एक्ट बनाए गए हैं या लॉज बनाए गए हैं उनको वो चेक कर सकता है। इस प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। नाउ द सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स। हमने अभी डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड दैट सम सर्टेन राइट्स आर गिवन टू अस। कुछ दी राइट्स हमें दिए गए हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, लेकिन क्या वो हमसे कभी भी नहीं छीने जा सकते? हाँ, एंड द नॉर्मल जनरली नॉर्मल सिचुएशन में हमसे हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमसे कोई नहीं छीन सकता है या उसके अगेंस्ट जाकर फंडामेंटल राइट्स। We have discussed that our constitution given some fundamental right to us। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। our fundamental rights are not absolute। अगर कभी कंट्री में ऐसी नेशनल इमरजेंसी आती है या ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारे इन फंडामेंटल राइट्स पर कुछ लिमिट्स लगाई जा सकती हैं। जैसे एट प्रेजेंट हमारी जो एपिडेमिक सिचुएशन चल रही है उस समय हमारा जो राइट है फ्रीडम का, तो हम नहीं कह सकते हैं कि फ्रीडम इज आवर फंडामेंटल राइट। हमारी इस राइट्स पर कुछ लिमिट्स हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। तो आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन बी सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। ऑफ लॉ, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ हम कह सकते हैं हमारे लॉ की जो महत्व है या महत्व है वो बहुत मायने रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे समाज के लिए।
All of us want to live in a social and political environment wherein we can freely pursue our goal without the fear of oppression, injustice, and discrimination. It brings order and security in the society. They help people to progress and protect them from unfair practices. हमारा जो लॉज है, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे समाज में कोई भी ऐसा वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज ऐसी नहीं है जो अपने आप को डेवलप नहीं कर सकती है, या उनके साथ या उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर कुछ गलत होता है या वॉलिंग होने की कोशिश की जाती है, उनको डिनाइड करने की कोशिश की जाती है, तो वो अपनी अपील कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो हमारे लॉ की महत्वपूर्णता ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाते हैं, डिनाइड किए जाते हैं, तो वी कैन मूव टू कोर्ट। और ये हमारे लॉज हमें हमारा शोषण होने से बचाते हैं कि कोई भी मानो कोई रिच पर्सन है वो पुअर का या जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। इट्स ब्रिंग सिक्योरिटी एंड पीस इन द सोसाइटी। Now the fifth point is law and dissent. What is the meaning of law? We have read, but the dissent. What is dissent? Dissent means an expression of disagreement. Disagreement means हम कह सकते हैं हमारा जो सरकार है, गवर्नमेंट है, हो सकता है उन्होंने बाय मिस्टेक या जानबूझकर ऐसा कोई एक्ट या ऐसा कोई रूल बना दिया गया है जो किसी के लिए या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हमारे लोगों के इंटरेस्ट में, हमारे लाभ में नहीं है। तो ये हमारी फ्रीडम है, ये हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम दी गई है दैट वी कैन एक्सप्रेस आवर व्यूज इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, बट इट मस्ट बी इन द पीसफुल मैनर। हम हमारे व्यूज, हमारे एक्सप्रेस, हमारे जो विचार हैं हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे जो मेथड है हमारे व्यूज रखने का वो पीसफुल मैनर होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल रैलीज, धरना, स्ट्राइक्स, ये कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम अपना डिसेंट, हमारा जो विरोध है, हमारा जो अपोजिशन है या डिसएग्रीमेंट है गवर्नमेंट से, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट? डिसेंट मींस एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और अपोजिशन, इट इज कॉल्ड डिसेंट। विरोध करना या अपना जो व्यूज है गवर्नमेंट के सामने रखना। इसके मोस्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें या हम एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसके दो एग्जांपल हम ले सकते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लिबरल कैंपेनिंग या मूवमेंट हम बोल सकते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह, यू हैव लिसन दिस वर्ड अर्लियर आल्सो। सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा निश्चित किया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के थ्रू। सॉल्ट सत्याग्रह में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे जो सॉल्ट मेकिंग थी उस पर भी टैक्सेस जब लगाना स्टार्ट किया था, तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी है, उन्होंने इस लॉ को अपोज किया था, डिसेंट किया था, और उसके लिए उन्होंने 12 मार्च 1930 he marched with the 18 of his followers from Sabarmati Ashram to the coastal village of Dandi in the Gujarat to oppose the government policy। उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए दांडी यात्रा या दांडी मार्च हम जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट की थी। उसके बाद उन्होंने खुद अपने हाथों से नेचुरल तरीके से सॉल्ट बनाकर इस लॉ को ब्रेक किया था, तोड़ा था। और उसका अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेना चाहें तो एंटी लिबर कैंपेनिंग मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में हुआ था 1991 में, a group of women from the Nellore district of Andhra Pradesh began a protest movement against the widespread practice of alcoholism। अल्कोहल एरिक बोलते हैं, लिवर बोलते हैं शराबबंदी के लिए। आंध्र प्रदेश की कुछ विमेंस थी जिन्होंने अपनी फैमिलीज में जो ये जो मेल मेंबर थे उनके द्वारा जो शराब की उनको जो लत लगी थी उसके खिलाफ मूवमेंट की थी। ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी एंड ओल्ड वुमन नेम वर्धननी गोसामा। She organized the movement and led the protest which eventually forced the Eric trader to leave the area। इस मूवमेंट में जो लेडी थी उन्होंने कई सारी लेडीज को अपने साथ इकट्ठा किया और उन्होंने स्ट्राइक की, और जितनी भी उस एरिया में शराब की या जो लिक्विड जो शॉप्स थी उनको बंद कराने के
लिए अपनी मांग उठाई और उसका रिजल्ट भी मिला। गवर्नमेंट ने उन सारे एरिया में जो इलीगल तरीके से जितनी भी शॉप थी उनको बंद करवाए थे। तो ये कुछ 2 एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हम अपने व्यूज, हम अपने एक्सप्रेशन या हमारे जो रूल और रेगुलेशन पार्लियामेंट